Hello students, welcome all of you on Akshi Academy YouTube channel. Students, I am Dimple Kataria here teaching you the worksheet number 81 of class 10th maths. Okay, and this worksheet will be distributed to you on 3rd Feb 2021. And in this worksheet we will revise the chapter number 3rd, that is pair of linear equations in two variables. Clear students? So students, we know very well that the standard form of the linear equation are as the form like a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, and we have three cases here. And first case, wherever we are getting intersecting lines, that means these lines. Okay, we are seeing that these lines are intersecting only at one point. Okay, only at one point. So the solution is unique, and if we are getting solution, then this type of solution will be consistent. Okay, and in this situation we will have the condition a1 upon a2 that is not equal to b1 upon b2. Clear? And second case is that when we are getting parallel lines, that means no intersection. Okay, no intersection, that means no solution. And whenever we are getting no solution, that means the type of solution is inconsistent. In inconsistent solution, we have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but this is not equal to c1 upon c2. Clear students? Inconsistent के केस में ये होगा. Clear? And next जो हमारे पास थर्ड टाइप है, that is coincident, in which we have the lines like this. Okay, there here we are getting here we are seeing that these lines are touching each other at many points. Okay, so many solutions are present here, many solutions, that means consistent solutions. Okay, and consistent solution, that means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, that means all ratios are equal. Okay, and we have some methods to find solutions of a pair of linear equations, and in these methods we have three methods basically: graphical method, substitution method and elimination method. You know that graphical method, आप इस मेथड में क्या करते हैं, आपके पास टू वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, आप इन दोनों के लिए मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ को रखते हुए ना ग्राफ प्लॉट करते हैं. ठीक है, और वो आपको लाइंस मिलती हैं एंड दैट मे बी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट. ओके, एंड उसके बेस पे आप वहाँ पे सोल्यूशन जो है वो बता सकते हैं. एंड नेक्स्ट दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, आपके पास दो इक्वेशन होती है और आप उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज़ करके x या y वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अगर आप यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं तो जो भी वैल्यूज़ आपके पास आ रही है आप उसे इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे. ठीक है, फिर वहाँ से आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा, तो जो भी वेरिएबल मिलेगा आप उसको अगेन फर्स्ट में अप्लाई करेंगे, देन आपको सेकंड मिलेगा. क्लियर? एंड एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि आप x या y के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के बाद उन दोनों इक्वेशंस को आप प्लस या माइनस कर देते हैं, जिससे आपको x और y में से कुछ भी वैल्यूज़ जो है मिल जाती है. ठीक है, अब इन पर बेस्ड हमारे पास यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. इफ x इज इक्वल टू 3m प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 4, these are the solution of equation 2x plus y is equal to 3, then find the values of x. So students, अगर ये आपके पास इस इक्वेशन के सोल्यूशन है तो इट मीन्स कि ये इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. ओके, देन हम यहाँ पर x के प्लेस पर 3m प्लस 1 जो है वो अप्लाई कर देते हैं और y के प्लेस पर 4 एंड इक्वल टू 3. 2 into 3 6m plus 2 plus 4, this is equal to 3, and 6m plus 2 plus 4 will be equal to 6 and this is equal to 3, and 6m is equal to 3 minus 6, that is equal to minus 3, and m is equal to minus 3 upon 6, that means minus 1 upon 2. This is the value of m. Next question, for what value of k the linear equation x plus 2y is equal to 4. आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके से कन्वर्ट कीजिए, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड इक्वेशन kx प्लस 4y इज इक्वल टू 12. वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन लाइक kx प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0.
एंड इट हैज़ नो सोल्यूशन, ओके, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन का जब आपके पास केस होता है तो उस कंडीशन में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर हम ना इनके कंपेयर करते हैं इनको। A1 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1, B1 this is equal to 2 and C1 is equal to -4. Similarly, we may calculate A2 that is equal to K, B2 is equal to 4 and C2 that is equal to -12. So after applying these values we have 1 upon K is equal to 2 upon 4 and not equal to -4 upon -12. Clear students? So after calculation, if we are taking two sides, okay, then 1 upon K is equal to 2 upon 4. After cross multiplication we get 2K is equal to 4, that means K is equal to 2. So K is equal to 2 is the answer. Clear students? तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What type of straight lines are represented by the equations? Equations are 3x plus 2y is equal to 11. Okay, we can rearrange this equation like 3x plus 2y minus 11 is equal to 0, and second is 2x plus 3y is equal to 4. Then we can rearrange it like 2x plus 3y minus 4 is equal to 0. A1 that is equal to 3, B1 this is equal to 2 and C1 is equal to minus 11. Similarly, we can calculate A2 that is equal to 2, B2 this is equal to 3 and C2 is equal to -4. Then we may calculate A1 upon A2. This is equal to 3 upon 2. Clear? And B1 upon B2. This is equal to 2 upon 3. And C1 upon C2. ये आपके पास क्या होगा? This will be equal to -11 upon -4. Minus minus sign will be cancelled by each other and we will get 11 upon 4. So first of all we will compare A1 upon A2 and B1 upon B2. Clear? So we are seeing here that 3 upon 2 is not equal to 2 upon 3. That means A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. और जब बच्चा हमारे पास ये वाला सिचुएशन होता है तो हमारे पास कितने सोल्यूशन होते हैं? यूनिक सोल्यूशन होते हैं। यूनिक सोल्यूशन दैट मीन्स हमारी जो लाइंस है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सो द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग हेयर। क्लियर? तो जो भी हमारे पास लाइंस है उनका नेचर यहाँ पे कैसा हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप देख लो y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ओके, सो वी कैन राइट हियर एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद द इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 5y की जगह 0 अप्लाई कर दीजिए तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड इट इज 2x दैट इज इक्वल टू -1 एंड x विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? एक्स वाई दैट इज इक्वल टू -1/2 एंड y दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। Draw the graph of the equation 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. So first हम ना यही वाली इक्वेशन ले लेते हैं 3x plus 2y minus 5 is equal to 0। तो बच्चा जब भी आप ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करने चलोगे तो मेरी मानना क्या कि आप पहले तो क्या करना, x की वैल्यू 0 कर देना फर्स्ट केस में। ओके, x इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर दोगे तो x इंटू 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2y minus 5 is equal to 0 and 2y is equal to 5 and y is equal to 5 upon 2, that means 2.5. okay, so coordinates are x is equal to 0 and y is equal to 2.5. क्लियर? नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पे क्या करते हैं, y की जो वैल्यू है ना उसको 0 अप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट टाइम में। y is equal to 0, then you get 3x minus 5 is equal to 0 and 3x is equal to 5
एंड आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट x दैट इज इक्वल टू 5/3 और x इज इक्वल टू 5/3 जो वैल्यू है वो आपके पास 1.67 आपको मिल जाती है। क्लियर बच्चा? तो यहाँ पे आपके पास एक्स वाई आपको मिल जाता है 1.67 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हो गई हैं। आप इनको एक टेबल के फॉर्म में भी रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई, वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 2.5 एंड वेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1.67। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें लेकर चलते हैं। 9x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 0 अप्लाई कीजिए, देन यू विल गेट 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5। सो कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड -5 एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आप y इज इक्वल टू 0 अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हमें मिलता है फिर 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू -5 एंड x विल बी इक्वल टू -5/9 दैट इज इक्वल टू -0.55। ओके, अगर आप इन वैल्यूज़ को भी यहाँ पर टेबल के फॉर्म में रीअरेंज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क है हमारे पास ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ये जो ग्राफ है इस तरीके से मिलता है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिए हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पर x की वैल्यू तो क्या है 1.67 है, ठीक है, एंड y दैट इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये हमारे पास ये वाला पॉइंट हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम देखें इस लाइन पे, ये हमारे पास पॉइंट जो है जिसमें हमारे पास वैल्यू जो है x की तो कितनी है, यहाँ पे आप देखिए 2.5 है एंड सॉरी x की नहीं, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 2.5 है और x की वैल्यू हमारे पास कितना है 0 है। हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें ये वाली स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, ये फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन है। एंड सेकेंड टाइम में हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लेते हैं। फर्स्ट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर 0 एंड y दिस इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाता है, दिस वन। एंड नेक्स्ट टाइम पे x की वैल्यू हमारे पास माइनस है, माइनस में 0.55, ये हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। x दैट इज इक्वल टू माइनस में 0.55 और यहाँ पे y क्या होता है 0। तो ये जो इक्वेशन हमें मिलती है लाइन हमें यहाँ पे सेकंड के लिए मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों इस पॉइंट पर, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और जिसको यहाँ पर हम देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास -1 और y की वैल्यू क्या है 4। सो -1 एंड 4 आर द सोल्यूशन। और बच्चे जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, आप यहाँ पे क्या करोगे, स्केल मेंशन करोगे और स्केल आप लेंगे एक x एक्सिस पे और दूसरा आप यहाँ पर लेंगे y एक्सिस पे। जब भी एक स्केल आप x एक्सिस पे लेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 यूनिट जो है हमारा, हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। आप देख रहे हैं कि जो भी वैल्यूज़ हैं इनमें 1 का ही डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरली हमने y एक्सिस पर भी सेम स्केल लिया है तो ये हमारा यहाँ पे स्केल हो जाता है और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 in which we have to calculate solve for x and y, x plus y upon xy is equal to 2। तो बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो जरा, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, इनको सेपरेट कर दीजिए, देन सेपरेशन के बाद आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ मिलेंगी। ओके, x विल बी कैंसिल बाय ईच अदर, देन इट विल 1/y प्लस एंड हेयर वी विल गेट 1/x दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, इन विच वी हैव x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ओके, आफ्टर सेपरेशन वी गेट x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 6। x विल बी कैंसिल, y विल बी कैंसिल, देन 1/y minus 1/x this is equal to 6 and it is our equation number second। सो स्टूडेंट्स आप अगर चाहें ना इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 इनको क्या कर रहे हो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो।
तो 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 एंड हेयर 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। आप यहाँ चाहें तो इनको a और b भी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी हो जाएगा। देखो x से x कैंसिल हो गया, 1/y प्लस 1/y विल बी इक्वल टू 2/y इज इक्वल टू 8। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, y ऊपर शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 8y दैट इज इक्वल टू 2 एंड y विल बी इक्वल टू 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4। ओके, y की हमें वैल्यू मिल जाती है, हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। चलिए हम इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई कर देते हैं। आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, तो 1/y देखो y की वैल्यू 1/4 आई है, तो 1/y हमारे पास कितना होगा, ये हमारा 4 के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे 1/x इस तरफ आ जाएगा और ये 4 माइनस 6 दैट मीन्स 1/x दिस इज इक्वल टू -2। क्लियर बच्चा? 1/x की वैल्यू -2 है, तो जैसे आपने यहाँ पर y को कैलकुलेट किया, सिमिलरली x आपके पास क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं x दैट इज इक्वल टू -1/2, ये वैल्यू मिली, एंड y इज इक्वल टू 1/4। तो x और y जो है हमें यहाँ पे मिल जाते हैं और हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बच्चा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।